পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। নতুন আপডেট জন্য চ্যানেলকে লাইক, সাবস্ক্রাইব ও কমেন্টস করুন। আজকে পি আপডেট আজ দ্য এডুকেশনিস্ট ফোরামে দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ, প্রেস বার্তা, শিক্ষাবিদদের ফোরাম এবং সামাজিক মঞ্চ যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে। বর্তমান লোকসভা নির্বাচনে বিষয় নিয়ে কেন্দ্রবিন্দু মোদি এবং অমিত শাহ ছিলেন। ইন্ডিয়া ওয়ান্টস আইওশর্স কালো টাকার ব্যবহার, মজুদ এবং বটন সম্পর্কিত প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বিবৃতি, কর্পোরেট গভর্নেন্সের নিয়ম, এসইবিআই এর মতো নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব, পিএমএলএ এর প্রযোজ্য বিধান, এড এবং সিবিআই এর এখতিয়ার, শেয়ার মার্কেট ক্র্যাশ এবং প্রশ্নবিদ্ধ ইনসাইডার ট্রেডিং, ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে চিঠি প্রকাশ এবং নির্বাচন কমিশন এবং সেবি সহ বিভিন্ন স্তরে কর্তৃপক্ষকে চুপচাপ কেন। এখানে স্টক মার্কেট স্ক্যাম, হর্ষদ শান্তিলাল মেহতা এবং সত্যম স্ক্যাম নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের এক সাক্ষাৎকার মিডিয়া চ্যানেলকে বলেছেন যে 2024 সালের সাধারণ নির্বাচনের স্টক মার্কেটের গতিবিধিকে সংযুক্ত করা উচিত নয়, কারণ তিনি স্টক বিনিয়োগকারীদের 4 জুনের আগে কেনার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। এটা নিয়ে বিরোধ শুরু বিপক্ষে দল, পার্টির। সেকুলার পার্টির সমর্থক চিৎকার শুরু করলেন। এই বিষয় নিয়ে এক প্রতিবাদ রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লেখা হয়েছে, কিন্তু প্রশ্নের সময় একটা প্রশ্ন করা হয়, অনলাইন টাকা যাচ্ছে, তবে নগদ টাকা কোথায়? নোটকে ব্যবহার করছে। উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ওম প্রকাশ মিশ্রা, প্রাক্তন ভাইস উপাচার্য, পূর্ণেন্দু বসু, প্রাক্তন মন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেস, প্রফেসর অখিল স্বামী সহ অন্যরা। প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য উপর তদন্ত চাইলেন সহ 4 তদন্ত ডিমান্ড করলেন। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্রে রেখে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে 4টি দাবির তদন্ত করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী শর্তাবলী বর্তমান আছে, আগের সরকারের কথা নেই কেন? পূর্ববর্তী সরকার আমলে হর্ষদ মেহতা এবং সত্যম স্ক্যাম হয়েছে। মি চন্দ্রস্বামীর 90-এর দশকে অনেক রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং অভিনেতাদের পরামর্শদাতা এর নির্দেশনায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষ করে কংগ্রেস, জন্য তহবিলের উৎসের চেয়ে বেশি। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের সময় হর্ষদ মেহতাকে তহবিলের উৎস হিসেবে ব্যবহার করত। তিনি তৎকালীন বিকালের টাকা পরিশোধ করেছিলেন। পূর্ব প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহ রাও একটি দলীয় তহবিল হিসাবে টাকার পরিমাণ বা কেলেঙ্কারি থেকে তার নাম পরিষ্কার করতে দিলেন। অভিযোগ করেন যে চন্দ্রবাবু নাইডুর ছেলে লোকেশের বিদেশি শিক্ষা বিল পর্যন্ত পরিশোধ করেছেন সত্যম কেলেঙ্কারি, যেখানে রাজনীতিবিদদের সাথে ব্যবসা ছিল। প্রশ্ন করা হয়েছে কোটি কোটি টাকার পাহাড়, ইডি, সিবিআই বের করা করছেন কার টাকা? কিছু প্রশ্নের উত্তর হয় না। যত দোষ নন্দ ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোভে পাপ মৃত্যু মুখে পড়তে হচ্ছে। কানা গরুর ভিন্ন পথে দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক সংস্করণ দল, সমর্থক বা পার্টির সাথে সময় হইয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায় হয়। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় স্ক্যাম হয়ে যাচ্ছে স্টক মার্কেট ম্যানিপুলেশন। শুধু অমিত শাহ বলেননি, গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী आज हम जिस चीज से चिंतित हैं और हम ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इसलिए सिर्फ होना चाहिए, और के माध्यम से यूपीआई के माध्यम से मध्यम वर्ग और जो छोटा व्यक्ति है वो पेमेंट कर रहा है। तो पहला प्रश्न ये उठता है, ये कैश कहाँ जा रहा है, ये कौन कर रहा है? जो कि जब नोटबंदी के समय में पता चला था कि जो छोटा आदमी था, जो मध्यम वर्ग का आदमी था, जो गरीब आदमी था, उसके घर में तो थोड़े बहुत पैसे थे, वो लाइन में लगा था। और जिसे कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में पता हो, उसे गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पता हो। अगर वो कोई सूचना लीक करता है जिसके लिए वो अधिकृत ही नहीं है, अगर वो सूचना देता है कि शेयर मार्केट को खरीद लो, ये देखिए एक चीज आपको आश्वासन देता है कि 4 जून के बाद शेयर मार्केट बहुत तेजी पकड़ेगा। जो हंसते हैं प्राइवेट शेयर मार्केट को खरीदते हैं, और कुछ समय जिन्होंने शेयर बेचे थे, बड़े प्रोमोटर्स ने, बड़े पैसे वालों ने, वो शेयर्स को 4 जून के बाद यह आश्वासन कौन दे सकता है कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा? मान लीजिए उनकी बात मानकर शेयर मार्केट में अपनी सारी संपत्ति बेच से पैसा लगा दें। अगर शेयर मार्केट 5 जून को नहीं बढ़ा, मैं किस कोर्ट में जाके किसकी शिकायत करूंगा?
और क्या ये मेरे साथ एक होगा कंपनी होगी, ये जरूर है कि उसकी प्रमोटर होल्डिंग मुकेश अंबानी जी का होगा। कंपनी में तो चलिए पहले प्रश्न उठा था, जो कि ने बताया था कि उसके प्रमोटर्स का 75% ऊपर है, जो कि सेबी के नियमों का है। मिनिमम प्रमोटर्स होल्डिंग 25% की होनी चाहिए और मैक्सिमम 75% की होनी चाहिए। अगर 75% से ऊपर होगी तो आपको याद होगा हर्षल मेहता और केतन बाजू उन्होंने सारे स्टॉक्स को मार्केट में हाई दिया था, सारे स्टॉक को बेच दिया था। ये वो पैसा है जो स्टॉक इन्वेस्टर्स का पैसा था, इसको ब्लैक मनी क्यों लगाया गया? हमें इससे मतलब नहीं कि बीजेपी के पास गया, कि राहुल गांधी के पास गया, कि कांग्रेस के पास गया। अगर शेयर होल्डर्स का पैसा ब्लैक मनी में कन्वर्ट होकर किसी भी राजनीतिक के पास गया है, जब शेयर का लॉस हो गया, उसकी डाउन जाने से केवल एक सूचना के आधार पर नहीं चलता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स होते हैं। मार्केट की सेलिंग होती नॉर्मल कंडीशन में और इसे कंपेंसेट तक किया जाता, मार्केट का 40% क्रैश कर दिया होता। सत्यम की होती जितने भी फॉरेन लेंडर्स होते हैं, हिंदुस्तान की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की परिणाम उसने क्या किया था, गवर्नमेंट ने कंपनी को मत चलाया था और टेक महिंद्रा कंपनी है, सत्यम को जिसने टेक ओवर कर लिया। आज की तारीख में सत्यम टेक महिंद्रा अच्छी चल रही है, उनके शेयर होल्डर्स को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसके वेंडर्स को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, एम्प्लॉइज को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा और विदेशी संस्थानों का लगा हुआ पैसा और लेंडर्स का लगा हुआ पैसा अगर डूबेगा तो केवल दो कंपनी का पैसा नहीं डूबेगा, हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा भी डूबेगी और हमारे जो कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ का पालन करती है उनको भी अनुकूलता मिलेगा। हम स्मॉल इन्वेस्टर्स को हम लोग आपके माध्यम से कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम नहीं कह रहे कि कोई फर्जीवाड़ा हो गया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं हमें जानने का अधिकार है कि जो मार्केट को 7% गिराया गया एक नेगेटिव स्टेटमेंट देके और एक और चीज नहीं कर पा गया, उसने मानने का केस उसने मानने का केस তো ওরা দেশের ক্ষেত্রে পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট ইন ইকোনমি এটা যদি হয় তাহলে তার অধঃপতন এটা হবে। এই কথাটা আমি বলতে চাইলাম। क्या कहा या स्प्लिट करना बहुत दिक्कत वाली बात है। हम ऐसा नहीं करते। देश में इलेक्शन हो रहा है, देश में गुजरात में 2 फेज में इलेक्शन हुआ। गुजरात में 14 आपको याद होगा, गुजरात में 7 मई को खत्म हो गया और प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट कब आता है? करीमनगर में तेलंगाना में 8 मई को। कोई कनेक्शन है क्या? कोई कनेक्शन है? ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दे हैव ऑटोमेटिक जुडिशियल अगेंस्ट दी होम मिनिस्टर। पर अच्छी बात यह है जो होम मिनिस्टर जो है और कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक कैबिनेट के जो मेंबर हैं, सब मिनिस्टर सब कमेटी के मेंबर नहीं होते, कैबिनेट कमेटी के मेंबर नहीं होते, और तो कैबिनेट कमेटी के मेंबर हैं। तो क्या इनसाइडर ट्रेडिंग जो कि बैन है और लोग जेलों में जाते हैं, आप देखिए टेली के वेबसाइट पे जाइएगा तो इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर काफी कुछ लिखा हुआ है, काफी लोग जेल में हैं, काफी लोग जेल में जाएंगे और पूरा 75 पेज का ऑब्लिगेशन दिया हुआ है जो किस तरह से आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं और किस परिणाम से कर सकते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। रेस्पेक्टेड चेयरमैन थे अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका बीजेपी में करता है, पब्लिक डोमेन में है, तो कोई बुरी बात नहीं है। किंतु यदि आप कैबिनेट कमेटी मेंबर हो और एडवाइस कर रहे हो, क्वेश्चन बनता है जहां भी इलेक्शन हो रहा है जो आपने नहीं कहा, क्या ये भी देख रहे थे इतना बड़ा डीलिंग हो रहा है ब्लैक मनी में, इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है? इलेक्शन कमीशन ने 8 तारीख को शाम को सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं पूछ लिया जो आपके पास कहां से इंफॉर्मेशन है जो ब्लैक मनी में डील हो रहा है?
इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह को ये क्यों नहीं पूछा जो आप चॉइस इकोनॉमिक चॉइस ऑफ द पीपल एंड द इकोनॉमिक प्रेफरेंसेस ऑफ द कैसे आप एफेक्ट कर सकते हो बाय गिविंग ए स्टेटमेंट तो आपको क्या करना है, आपको कब खरीदना है, कब बेचना है। तो है हमारी जो स्थिति है साइड लेटर है, हम लोग ये अभी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम ये समझते हैं, मानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र जो है उसकी रखवाली की जिम्मेदारी हम पाते हैं और इसका दायित्व वो निर्वाह करने की दिशा में आज हमारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया है। आपके जो সেই প্রশ্নগুলো হচ্ছে আরো গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এবার শেষের দিকে যাচ্ছি। আমাদের পক্ষে এখন এডুকেশন ফোরামে ডক্টর দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আপনাদের সবাইকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবেন।